Today we are on our sixth chapter, Unit 2, which is related to money and banking. In my last lecture, I told you regarding the money and money supply. Money supply कौन करता है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक. ये तीन लोग थे जो मनी सप्लाई करते थे. और उसी चीज को इलेबोरेट करने के लिए आज हम कर रहे हैं सिस्टम बैंकिंग. बैंक क्या है बेटे? पुराने टाइम में बेटे एक स्पेसिफिक तरह का बेंच होता था जिसके ऊपर बैठ के पैसे का लेन देन का काम किया जाता था. और उस स्पेशल तरह के बेंच को बेंची बोला जाता था. और उसी बेंची से करते 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 ये वर्ड बना है बैंक. बैंक इज दैट प्लेस या दैट इंस्टीट्यूशन वेयर देयर we can deposit our surplus money, and when there is a requirement we can take loans from banks. Banks are of two types. One is central bank and other is commercial bank. Central bank, here is a topic related to central bank. सेंट्रल बैंक हमारे इंडिया में 1935 में बना था. और सेंट्रल बैंक जो है इज दैट मॉनेटरी अथॉरिटी which controls the credit in the market, which is the monetary regulatory institution जो इकोनॉमी में किसी भी मनी से रिलेटेड जितने भी काम है उन कामों को रेगुलेट करने के लिए या मनी को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज बनानी है, उन पॉलिसीज को आगे फॉर्मुलेट करना है, कमर्शियल बैंक्स को समझाना है. बिकॉज सेंट्रल बैंक इज अपेक्स इंस्टीट्यूशन एंड वेयर एज commercial banks are under central banks, those who do the work according to the instructions passed by central bank. Central bank is doing so many works. वो उसमें फर्स्ट क्या है? As I told you that central bank is an apex institution to regulate the money system in an economy. अगर इकोनॉमी में बड़े इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, at that time how to control these problems, how to control the situations, this is made by central bank. और इसमें मॉनेटरी अथॉरिटीज जो गवर्नर जो हैं वो इसको कंट्रोल करने के लिए अपनी नई नई पॉलिसीज तैयार करते हैं. The functions of central bank, very first function is bank of issuing notes. As I told you that central bank is the apex bank which creates money in the market, which controls the money in the market. क्योंकि नए नोट इशू करने हैं whenever there is the problem in the economy, whenever there are the crisis time in an economy, at that time central bank will issue the notes as per according the order of IMF. IMF is the International Monetary Fund, which is the monetary regulatory institution at the world level. जो हम उसके अंडर हम सेंट्रल बैंक जो है वो काम करता है. सेंट्रल बैंक वहां से ऑर्डर्स लेके उस अकॉर्डिंग न्यू करेंसी को इशू करता है. न्यू करेंसी whenever there is the issuing of new currency, the central bank has to deposit 200 crores in the form of gold as well as security. Then central bank can issue new currency. ये मैंने पिछले चैप्टर में भी आप लोगों को बताया था. फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज बैंकर टू द गवर्नमेंट. सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज द हेल्पर टू द गवर्नमेंट इन मैनेजिंग इट्स अकाउंट्स. गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स हैं बड़े उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, कितना पैसा गवर्नमेंट ने खर्च करना है, निकलवाना है, दैट ऑल आर मैनेज्ड बाय सेंट्रल बैंक. एंड सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज agent to the government for the sale and purchase of securities. Whenever government wants to sell or purchase the securities from the market, it will take the help from central bank. Central bank is also advisor to the government for framing policy for the money market. As I told you that we are having two types of the money markets, financial markets. One is money market and other is capital market. Money market which provides the short run loans to the government, and capital market which provides the long run loans to the market. So money market जो है जब भी मतलब कि गवर्नमेंट ने कोई नई पॉलिसीज फ्रेम आउट करनी है, मार्केट में पैसा इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, उससे रिलेटेड whenever the government wants to make the policies, then it will advise that whether there should be more credit in the market or lesser credit in the market. So such type of the policies are framed by central bank for government.
थर्ड इज बैंकर्स बैंक. सेंट्रल बैंक इज बैंकर फॉर द बैंक्स. ऑल मतलब ऑल द कमर्शियल बैंक्स आर अंडर सेंट्रल बैंक. दे टेक द हेल्प फ्रॉम सेंट्रल बैंक इन द पीरियड ऑफ क्राइसिस. तो मतलब कि जो सेंट्रल बैंक है दैट एक्ट्स एज सुपरवाइजरी रोल फॉर द कमर्शियल बैंक्स रिगार्डिंग द रिजर्व रेशो. रिजर्व रेशो इज वर्ड विच वी हैव टू लर्न इन द बैंकिंग सिस्टम. क्योंकि जब भी बेटा आप लोग बैंक में पैसा जमा करवा के आते हो, जितना भी पैसा आपने बैंक में जमा करवाया, बैंक उस सारे का सारा पैसा आगे यूटिलाइज नहीं करता. उसमें से कुछ अमाउंट वो अपने पास रिजर्व रखता है. दैट इज फॉर द क्राइसिस टाइम पीरियड. क्योंकि ये तो बैंक्स को पता ही है कि जितने भी लोगों ने पैसा बैंक में जमा करवाया वो सारे के सारे इकट्ठे अपना पैसा निकलवाने के लिए नहीं आएंगे. कोई पैसा कुछ लोग जमा करवा जाते हैं, कुछ लोग पैसा निकलवा के देते हैं. तो सपोज कर लो बैंक को अपनी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पैसा अपने पास रिजर्व रखना पड़ता है. और वो रिजर्व रेशो कितना होगा, हाउ मच मनी कमर्शियल बैंक हैज टू कीप as a reserve ratio, that is determined by central bank. So it provides a supervisory role regarding reserve ratio. Central bank accepts the deposit and provides the loans to the commercial banks. Whenever the commercial banks are having surplus money, they can deposit their money in the central bank, and whenever there is a need to the commercial banks, they can take the loan. They can advance the loans from central bank for their day-to-day works. Central bank act as a clearing house also. Clearing house function जो है through check facility that is provided by central bank to the commercial bank. It is related to the clearing of interrelated commercial banks. Suppose कर लो दो banks ने आपस में कुछ लोन वगैरह लिया है आपस में. तो suppose A and B, there are two banks. A bank has taken the loan from B bank. So whenever there will be the money in A's account, then automatically that will go to the B bank's account. बेटे दोनों आपस में जो भी लेन देन है सेंट्रल बैंक उनके क्लियरिंग ऑटोमेटिकली कर देगा. जैसे ही एक के अकाउंट में पैसा आएगा तो जिसने दूसरे को देना है ऑटोमेटिकली उसके बैंक में कमर्शियल सेंट्रल बैंक कैन डिपॉजिट दैट मनी थ्रू चेक फैसिलिटी. The fourth function is lender of the last resort. Central bank is the lender of the last resort for the commercial banks. Whenever there are the crisis period for the commercial bank, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बैंक अपने आप को सेफ रखने के लिए कुछ पैसा अपने पास रिजर्व रखता है ताकि जो लोग पैसा निकलवाने के लिए आ जाएं, जो अपना पैसा जिनको ज़रूरत है या लोन लेने के लिए कुछ लोग आए, तो एट दैट टाइम there must be some amount with the commercial banks. And मान लो किसी टाइम पे काफ़ी लोग पैसा निकलवाने के लिए इकट्ठे आ गए. That is the period of crisis time for the commercial banks. तो उस टाइम पे commercial bank can take the help from the central bank. At that time, commercial bank will advance, central bank will advances the loans to the commercial bank to stabilize the money market. Money market में किसी टाइम के कोई ups and downs ना आए, उसके लिए सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स द हेल्प टू द कमर्शियल बैंक. नेक्स्ट इज कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज. सेंट्रल बैंक के पास बेटे जितनी भी फॉरेन करेंसी हमारे कंट्री में आती है बाहर से, उसका एक्सचेंज जो है वो सेंट्रल बैंक से होता है. सेंट्रल बैंक मार्केट में डर्टी फ्लोटिंग, एक बेटा आगे जाके आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट में ये चैप्टर में वर्ड आएगा डर्टी फ्लोटिंग या मैनेज्ड फ्लोटिंग. इट इज ऑल्सो नोन एज मैनेज्ड फ्लोटिंग. मैनेज्ड फ्लोटिंग मीन्स उसे फॉरेन करेंसी के रेट को स्टेबलाइज करने के लिए गवर्नमेंट जो है सेंट्रल बैंक जो है दैट यूजेस द पॉलिसी ऑफ मैनेज्ड फ्लोटिंग, ताकि फॉरेन करेंसी का रेट अप ना हो, बहुत ज़्यादा इंक्रीज ना हो या बहुत ज़्यादा डिक्रीज ना हो. उसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक जो है वो मैनेज्ड फ्लोटिंग करता है. सो फॉरेन करेंसी जितनी भी फॉरेन करेंसी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के थ्रू हमारी कंट्री में आती है, दैट ऑल विल गो टू द सेंट्रल बैंक. सो इट इज द कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी. नेक्स्ट पॉइंट इज क्लियरिंग हाउस, जो मैंने आपको ऊपर पहले बता दिया है कि हाउ इट क्लियर्स द अकाउंट्स ऑफ टू बैंक्स.
दो बैंक्स का अगर आपस में कोई लेन देन है, तो जो एक बैंक ने दूसरे बैंक से लोन लिया है तो ऑटोमेटिकली सेंट्रल बैंक थ्रू चेक इसको वहां पे वापस कर देगा। जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है कि उन्होंने लोन वापस करना है, सेंट्रल बैंक ऑटोमेटिकली इस चीज को क्लियर कर देगा। 7th पॉइंट जो है, वैसे तो बेटा आपको 6 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा। सो अगर आप चाहो तो क्लियरिंग हाउस फंक्शन को हमारे जो 3rd पॉइंट है बैंकर्स बैंक, उसी में ही आप लोग क्लियर कर सकते हो, एक्स्ट्रा पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि आपके पास मैक्सिमम 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, पर यहाँ पे आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन, मैंने पहले ही बोला कि बैंक्स में कैसे से रिलेटेड चैप्टर में आपको 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा, 6 का नहीं आएगा। बट फिर भी आपसे कोई भी फंक्शन अलग से भी पूछा जा सकता है कि इस फंक्शन को एक्सप्लेन करो, तो आप लोगों को उस हिसाब से सारे फंक्शंस इसके क्लियर होने चाहिए। द लास्ट फंक्शन इज कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। मनी मार्केट में या मार्केट में क्रेडिट कंट्रोल करने का जो मेन काम है, दैट इज डन बाय सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इज क्रेडिट कंट्रोलर। इट कैन कंट्रोल द क्रेडिट बाय यूजिंग 2 मेथड्स दैट आर क्वांटिटेटिव मेथड एंड क्वालिटेटिव मेथड। वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। यहाँ पर हमारा मैं सिर्फ आपको इतना ही बताऊंगी कि बैंक कंट्रोल्स द क्रेडिट इन द मार्केट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन। बैंक हैज टू कॉन्ट्रैक्ट द इन्फ्लेशन टाइम पे बैंक हैज टू कॉन्ट्रैक्ट द क्रेडिट इन द मार्केट, ताकि मार्केट में पैसा ज्यादा ना जाए। जितनी सप्लाई ऑफ मनी मार्केट में ज्यादा होगी उतना ही लोगों की परचेजिंग पावर ज्यादा होगी, देन पीपल विल डिमांड फॉर मोर गुड्स। तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी इन्फ्लेशन ज्यादा कर जाएगी। और ऑन द अदर हैंड इफ देयर इज द प्रॉब्लम ऑफ डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी, तो बैंक की कोशिश है, सेंट्रल बैंक जो है मार्केट में एक्सटेंड करने की, क्रेडिट को एक्सपैंड करने की कोशिश करता है। वो किसी भी तरीके से मार्केट में मनी को इंक्रीज करता है बाय डिक्रीजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और देयर आर सो मेनी मेथड्स, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तो यहाँ तक जो है हमारे पास central bank controls the credit in the market by using the qualitative and quantitative measures. By this way we can control inflation or deflation problem in the market. अब अगर हम दूसरी बात जो हम, ये तो हमारा सेंट्रल बैंक हो गया। नेक्स्ट सेंट्रल बैंक के अंडर जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स आर प्योरली अंडर सेंट्रल बैंक। whatever the policies are made by central bank are to be followed by the commercial banks. कमर्शियल बैंक यहाँ से ऑर्डर लेते हैं, उसी के हिसाब से मार्केट में क्रेडिट को क्रिएट करते हैं या क्रेडिट को कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक्स, अगर कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक दोनों में अगर हम डिफरेंस की बात करें, तो ये जो फंक्शंस हैं इन्हीं के बिहाफ पे हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द वेरी फर्स्ट पॉइंट, सेंट्रल बैंक इज द इश्यूअर ऑफ न्यू करेंसी, जबकि कमर्शियल बैंक जो है वो करेंसी को इशू नहीं करता। जो भी करेंसी सेंट्रल बैंक इशू करता है उसको मार्केट में एक्सपैंड करना या कम करना या इंक्रीज करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक। अगर हम ये देखें, सेंट्रल बैंक इज द बैंक ऑफ द गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक इज द बैंक ऑफ बैंक्स, ये फंक्शन बोले, तो वहीं पे कमर्शियल बैंक इज नॉट रिलेटेड टू सेंट्रल बैंक इज नॉट रिलेटेड टू पब्लिक। जनरल पब्लिक के साथ सेंट्रल बैंक का कोई रिलेशन नहीं है। बट अगर कमर्शियल बैंक की बात करें, कमर्शियल बैंक्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू पब्लिक। सो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, सेंट्रल बैंक इज द बैंक ऑफ बैंक्स वेयर एज कमर्शियल बैंक इज द बैंक ऑफ पब्लिक। फिर अगर हम बात करें कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी की, कमर्शियल बैंक जो है उसके पास फॉरेन करेंसी नहीं होती, ये सारा फॉरेन करेंसी को स्टडी करने का काम जो है वो सेंट्रल बैंक के पास ही है। क्लियरिंग हाउस, ये सारे जो काम है बेटे ये सेंट्रल बैंक के हैं, कमर्शियल के बैंक के नहीं है। नेक्स्ट है बेटे कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। अगर सेंट्रल बैंक क्रेडिट को कंट्रोल करता है तो कमर्शियल बैंक इज क्रेडिट क्रिएटर। सेंट्रल बैंक इज क्रेडिट कंट्रोलर बट कमर्शियल बैंक इज क्रेडिट क्रिएटर। ठीक है, और सेंट्रल बैंक के पास जितना भी हम लोग रिजर्व रेशो रखते हैं उसका कुछ पार्ट कमर्शियल बैंक, उसका कुछ पार्ट रिजर्व रेशो का कुछ पार्ट सेंट्रल बैंक में जमा करवाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश रेशो, एंड कुछ पार्ट वो अपने पास जमा रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का डिफरेंस। कमर्शियल बैंक एक वन मेन मोर पॉइंट, सेंट्रल बैंक का मेन मोटिव जो है दैट इज पब्लिक वेलफेयर, बट
कमर्शियल बैंक जो है उनका मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्निंग. Central bank always do all the works for the welfare of the economy, but commercial banks always do the work for their self motive, अपने प्रॉफिट के लिए. ठीक है, ये हमारे पास जो है सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में दोनों में डिफरेंसेस है. यहाँ पे हमारा एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है दैट इज रिलेटेड टू हाउ द कमर्शियल बैंक्स create the credit in the market as commercial banks are under the central bank. So जब भी उन्होंने क्रेडिट मार्केट में क्रिएट करना है they will take the advice of the central bank. So central bank always provides the instructions to the commercial banks and commercial banks जो है उसी instructions के हिसाब से ही आगे काम करते हैं. So this is our one topic, right? इसको अच्छे से आप लर्न कर लेना. ठीक है, बाकी नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे आगे. बेस्ट ऑफ लक बेटा. So by this way, commercial bank creates a credit in the market according to the order of central bank. But before doing the credit creation by the commercial banks, here are some basic terms which should be learned. क्योंकि इनके बिना आप लोगों को आगे जाके समझना मुश्किल हो जाएगा कि how commercial bank create the credit in the market. तो यहाँ पे हमारे पास बेटे one is legal reserve ratio. लीगल रिजर्व रेशियो विच कंसिस्ट LRR बोलते हैं बड़े, विच कंसिस्ट CRR एंड SLR. मैंने आपको पहले भी बताया है कि व्हेनेवर बैंक इश्यूज द न्यू क्रिएट्स द क्रेडिट इन द मार्केट, वो क्रेडिट ज़्यादा क्रिएट करना है या कम करना है दैट पॉलिसी इज मेड बाय द सेंट्रल बैंक. उसी पॉलिसी को बेस करके कमर्शियल बैंक्स आगे मार्केट में पैसा एक्सपेंड करते हैं. तो उसको एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन ये डिपेंड करती है लीगल रिजर्व रेशियो पे. लीगल रिजर्व रेशियो इज दैट अमाउंट विच द कमर्शियल बैंक हैज टू कीप इन रिजर्व, राइट, विच द कमर्शियल बैंक्स हैज टू कीप रिजर्व एज पर द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक ही उसको बोलेगा कि जितना भी टोटल डिपॉजिट बैंक्स में आ रहा है उसका 10% या 5% या 3% कितने परसेंट पैसा बैंक्स में अपने पास रखना है और बाकी का जो बचेगा पैसा द रिमेनिंग सरप्लस मनी विल गो टू द मार्केट फॉर द क्रेडिट पर्पस या लोन्स टू द पब्लिक. और ये लीगल रिजर्व रेशियो है, ये दो तरह की है. वन इज CRR, cash reserve ratio, which is kept in the form of cash. Commercial bank will collect this money या will keep this money in reserve as per the order of central bank. But इसको रिजर्व रखने के बाद सेंट्रल बैंक में ही डिपॉजिट करवाना होता है. कैश रिजर्व रेशियो इज दैट अमाउंट ऑफ द रिजर्व रेशियो which is collected by commercial bank but kept in central bank in the form of cash. ठीक है जी, कैश की फॉर्म में कलेक्ट करके इसे सेंट्रल बैंक में रखा जाता है. Whereas if we are talking about the statutory liquidity ratio SLR, that is in the liquid form, not in the form of cash, maybe in the form of cash also, but basically it is in the form of liquid. Liquid means to say सिक्योरिटीज होगी, बॉन्ड्स हो गए या गोल्ड हो गया, उसकी फॉर्म में रिजर्व रखा जाता है. इट इज ऑल्सो रिजर्व्ड एज पर द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल बैंक. हाउ मच रिजर्व रेशियो शुड बी देयर दैट इज ऑर्डर्ड बाय सेंट्रल बैंक. एंड बट इसमें इन दोनों में फर्क क्या है? ये जो है हम कलेक्ट करके सेंट्रल बैंक में जमा करवा देते हैं, जबकि इसको हम कलेक्ट करके कमर्शियल बैंक की बात कर रही हूँ, कमर्शियल बैंक विल कीप विद इटसेल्फ, अपने पास ही रखते हैं वो. ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपको पता लग ही गया होगा मेरे हिसाब से. दिस इज वॉल्ट रिजर्व रेशियो विच इज वॉलंटरली केप्ट बाय द कमर्शियल बैंक्स. बेटे इस पैसे को कमर्शियल बैंक अपने पास रखते हैं फॉर देयर ऑन सेफ्टी. कई बार ऐसा होता है कि ठीक है कमर्शियल बैंक्स को पैसे की जरूरत तो हमेशा पड़ती है, पर हर टाइम तो वो सेंट्रल बैंक के पास मांगने के लिए नहीं जा सकते. So for their own safety, they keep some cash along with them. That is known as the vault cash reserve ratio or voluntary reserve ratio, which is kept by the commercial bank for their own safety. And the last one more is topic is here CDR. What is CDR? CDR is cash depository ratio. बेटे जो commercial banks का काम है that depends upon the banking habits of the people.
देखो मैंने अपने पास जितना पैसा रिजर्व रखना था वो रिजर्व रख लिया, जितना पैसा लोगों को लोन देना था वो हमने लोन दे दिया, आप मेरे से पैसा लोन ले गए। बट बैंक्स में वापस पैसा कितना आ रहा है, दैट डिपेंड्स अपॉन द बैंकिंग हैबिट्स ऑफ द पब्लिक। कैश डिपॉजिटरी रेशो इज दैट डिपॉजिट विच कम्स बैक टू द कमर्शियल बैंक्स। क्योंकि बैंक का काम जो है बेटा वो एक सीक्वेंस में चलता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि हाउ कमर्शियल बैंक क्रिएट्स अवर क्रेडिट। तो मतलब कि कैश डिपॉजिटरी रेशो, इस रेशो की बात इतनी समझ लो कि जब भी पैसा मार्केट में जाता है उसमें से कितना पैसा वापस बैंक्स में आ रहा है, दैट इज नोन एज अ कैश डिपॉजिटरी रेशो। हाउ मच मनी पीपल डिपॉजिट इन द बैंक्स, इट डिपेंड्स अपॉन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल। क्योंकि हम लोग जैसे हम लोगों को पता ही है कि लोगों को ये लगता है कि पैसे बजाय के बैंक में जमा करवाने के हम अपने पास हार्ड कैश रखना चाहते हैं। बट वैसे आजकल तो एटीएम्स की वजह से हार्ड कैश रखने की ज़रूरत भी नहीं है, पेटीएम्स भी हैं इसलिए कोई ज़रूरत भी नहीं है। पर फिर भी लोगों को आदत है कि वो अपने पास कुछ पैसा कैश, हार्ड कैश की फॉर्म में रखना चाहते हैं। और दिस इज नोन एज द इट इफेक्ट्स द क्रेडिट क्रिएशन ऑफ कमर्शियल बैंक। जितना भी लोग अपने पास पैसा ज़्यादा जमा रखेंगे उतना ही बैंक्स में पैसा कम जाएगा, जितना बैंक्स में पैसा कम जाएगा उतना ही पैसा मार्केट में क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। एंड नेक्स्ट इज क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्रेडिट मल्टीप्लायर डिपेंड्स अपॉन 1 CRR भी कह सकते हैं, 1 LRR भी कह सकते हैं, लीगल रिजर्व रेशो भी कह सकते हैं। क्योंकि मोर द रिजर्व रेशो केप्ट बाय द बैंक्स, लेसर द अमाउंट विल गो इन द मार्केट। क्योंकि जितना पैसा लोगों ने बैंक में जमा करवाया है उसमें से सपोज करो 10% बैंक्स ने अपने पास डिपॉजिट रखा है, तो 1/10% दैट इज इक्वल टू 100/10। इट मीन्स 10 times क्रेडिट कैन बी क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक्स। अगर यही 20% रख लिया तो ओनली 5%, जो 5 times बैंक कैन क्रिएट क्रेडिट इन द मार्केट। कितने टाइम्स क्रेडिट मार्केट में क्रिएट होएगा, मल्टीप्लायर मतलब कि कितने टाइम्स, हाउ मच टाइम्स इट विल गो इन द मार्केट। तो ये डिपेंड करता है 1/CRR और 1/LRR। मोर द रिजर्व रेशो lesser the money will go to the market, lesser the reserve ratio more the credit will be created in the market. So merely it depends upon the reserve ratio। इसलिए बेटे जितना ज़्यादा बैंक क्रेडिट क्रिएट करना चाहते हैं वो उतना ही कम अपने पास रिजर्व अमाउंट रखेंगे। और इसके नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इन्हीं बेसिक टर्मिनोलॉजीज के ऊपर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स। वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाएंगे। इस लेक्चर को बड़े आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना। इन टर्मिनोलॉजीज को अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तभी आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रॉपर तरीके से समझ आएगा। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक का रिलेशनशिप मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, वो भी आपका पढ़ना बहुत जरूरी है। इसको प्रॉपर, इस टॉपिक को प्रॉपर तरीके से आप गो थ्रू हो जाना, तभी आपको नेक्स्ट टॉपिक को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओगे। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस अस ऑल।